मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली ने आज अपनी स्थापना के बाद 1500 से अधिक किडनी प्रत्यारोपण करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है, जो इस तरह के ट्रांसप्लांट सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र का पहला निजी स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इससे संबंधित मैक्स हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस We are की। very happy to share with you today the information that Max Hospital Mohali has completed 1500 kidney transplants just recently. Our journey began in August 2013 when the first kidney transplant was done at Max Super Speciality Hospital Mohali, and subsequently the numbers have grown, and now we do more than 150 transplants a year, and it's likely that this year we'll close at around 200 kidney transplants. That's what we expect. I'd also like to inform you that we do both AVO compatible transplants and AVO incompatible transplants, which we started doing a few years ago. AVO incompatible transplants are much more complicated, more risky, more costly as well. However, we now have a reasonable success with AVO incompatible transplants as well. In addition to that, we also do swap donor transplants. In other words, if a family doesn't have a blood group matched donor in the same family, and there is another family who also needs a transplant and who has also needs to exchange their donor with another family, so even that is possible now at Max Hospital. For all donors, those who are giving their kidney to somebody else, our surgeon does a laparoscopic donor nephrectomy, which ensures that the surgery is minimally invasive, the incision is very small, the healing is much faster. So the donor usually goes home within 5 days after kidney donation, while the recipient takes about 10 days. The donor goes home much earlier and recovers much faster. So we also offer the facility of robotic transplantation in case some patients are interested in that. That makes things much easier during the surgery for the transplant surgeon, because his field of vision, the magnification of the field of vision increases tremendously, makes the surgery much more accurate. Of course, it does to some extent increase the cost of virtually told you all that I really wanted to share with you. So we hope to continue doing a good number of transplants in future as well. I also might inform you that apart from the PGI Chandigarh, which is doing a large number of kidney transplants, there isn't any other hospital in this area, in this part of the country, which is doing that many kidney transplants as we are doing currently. So we hope to maintain these numbers and even build on them, grow more rapidly. Our hospital is currently undergoing an expansion. The bed strength is going to double within the next 6 months to 1 year. So we expect that our transplant numbers, our dialysis numbers will also go up in the near future. Thank you very much indeed. Dr. Sakhuja and Dr.
पूजा ने ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया है, सो मैं सिर्फ टेक्निकल पार्ट पे जाऊंगा। वी स्टार्टेड इन 2013 विद द सिंपलर ट्रांसप्लांट्स। ग्रेजुअली हमने धीरे धीरे ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। स्टिल रिमेंबर वी डिड द फर्स्ट HIV पॉजिटिव ट्रांसप्लांट, HIV पॉजिटिव पेशेंट मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट किया था, विच वाज द फर्स्ट इन द रीजन। देन वी डिड ट्रांसप्लांट्स विद द पेशेंट्स जिनमें डोनर में कैंसर था, जिसमें हमने कैंसर को रिमूव करके किडनी ट्रांसप्लांट किया था। Then we did pediatric transplants, छोटे बच्चों में 4 साल, 5 साल, 10 साल वाले बच्चों में किया। We started laparoscopic nephrectomies, दूरबीन से किडनी निकालने का, वो भी सबसे बढ़िया मैक्स हॉस्पिटल में स्टार्ट किया। अभी recently we have started with robotic transplant, and Max is the only hospital doing active robotic kidney transplants, which is being done by 6 or 7 hospitals in India overall. We have done about 40 already, 40 के करीब हमने already कर लिए हैं। And very recently we have also started with the disease donor transplant. That means जो patient brain dead patients हो जाते हैं, जो मरने के बाद अपने organs donate कर देते हैं, so वहाँ से भी लेकर निकलते हैं। So all in all, Max Hospital में kidney transplant के हर तरह का transplant we have been doing, and we have been doing with a great success, about 97-98% लोगों का success rate के साथ में। So that's pretty much it from my side, the technical part. Dr. John कुछ बोलना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है एक्चुअली ये उन पेशेंट्स का होता है जो कि रिनल फेलियर, किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। तो ये पेशेंट्स या तो डायलिसिस पे रहेंगे, इनकी किडनी खराब हो जाती है, और या फिर उनका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो डायलिसिस जो होता है वो लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। जब किसी किडनी डैमेज हो जाती है तो उसको हमेशा के लिए डायलिसिस पे रहना पड़ता है। तो ट्रांसप्लांटेशन एक लाइफ चेंजिंग चीज़ है, एक सर्जरी है या एक प्रोसीजर है फॉर अ पेशेंट हु इज ऑन डायलिसिस। क्योंकि डायलिसिस में वो बन जाता है, उसको रेगुलर डायलिसिस कराना पड़ेगा, तो उसका पर मंथ का खर्चा होगा, हर चीज़ होगी। ट्रांसप्लांटेशन में अगर कोई फैमिली डोनर है, कोई जेन्युइन डोनर है, उसको किडनी लग जाती है तो फिर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसके बाद वो कोई काम कर सकता है, सब चीज़ें कर सकता है, और अगर आप उस पेशेंट को भी देखोगे तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ पेशेंट्स आए भी होंगे जो पहले शायद डायलिसिस पे थे कुछ समय के लिए, कोई 2 महीने के लिए होता है, कोई 6 महीने के लिए होता है। तो ट्रांसप्लांटेशन को डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। और एक किडनी हम डोनेट कर सकते हैं, हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, तो एक किडनी डोनेट कर सकते हैं। अगर हम फिट हैं, अगर हम हेल्दी हैं, हमें डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो एक किडनी डोनेट की जा सकती है। तो इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी जो है आज के टाइम में काफ़ी सेंटर्स इसको ऑफर कर रहे हैं, बट हमारे सेंटर्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जैसे बताया था उसको हम कर रहे हैं, तो यही होता है। कि हमारी सोसाइटी में किडनी बीमारी और उसके ट्रांसप्लांट को लेके काफ़ी वहम है। अक्सर लोगों की धारणा है कि जिसकी किडनी खराब होगी उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए पेशेंट बहुत अच्छी और लंबी लाइफ जी सकता है। उसमें एक हिंड्रेंस हमें जो आती है वो है किडनी डोनेशन को लेकर, स्पेशली मेल डोनर्स। अगर हम एक डाटा की बात करें तो 70% किडनी फीमेल डोनर्स होती हैं और मेल डोनर सिर्फ 30% ही होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि किडनी डोनेट करने के बाद फिजिकल काम, अपना प्रोफेशनल काम, हैवी एक्टिविटी ये सब नहीं कर पाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, जो कि मिथ है, गलत धारणा है। किडनी डोनेशन के बाद में अक्सर ऐसा नहीं होता और पेशेंट अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटी, डेली प्रोफेशन, जो भी काम है वो फुल्ली एक्टिव तरीके से लाइफ लॉन्ग कर सकता है और ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी वीकनेस नहीं आती। तो अगर आप मीडिया के जरिए इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा सकें कि किडनी डोनेशन परफेक्टली सेफ तरीका है, उससे इस वहम को दूर करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा सेकंड पॉइंट यही था कि हम हाईलाइट करना चाहते थे कि मैक्स में ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी एक बहुत अच्छी क्वालिटी और सक्सेस रेट के साथ अवेलेबल है। पेशेंट्स अक्सर यही पूछते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद सक्सेस रेट क्या है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो अगर हम सर्जिकल सक्सेस रेट की बात करें, ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में पेशेंट अगर मेडिसिन ठीक लेता रहता है तो 10 साल 15 साल तक बड़े इजीली किडनीज को ठीक मेंटेन किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट किडनी डोनेशन, स्पेशली अगर मेल डोनर्स हैं फैमिली में तो उसमें भी कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। थैंक यू। ट्रांसप्लांट हुआ है, उनसे भी आप कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा ट्रांसप्लांट कम से कम मैंने 6-8 महीने ड्रेसेस करवाए। ड्रेसेस मेरी एक हफ्ते में 3 बार होती थी।
यानी कि रात को बहुत दिक्कत होती है, यानी कि मेरे को पता है, मेरे भगवान को पता, मैं कैसे 6-7 महीने जान से काट दूँ। ठीक है जी। अब जब से ट्रांसप्लांट करवाया हूँ मैं, जब से कोई पहले वाली कोई समस्या नहीं, जैसे पहले जी रहा था ना, नॉर्मल लाइफ ऐसे जी रहा हूँ, कोई दिक्कत खाने पीने की वैसे कोई दिक्कत नहीं। सबसे बढ़िया ट्रांसप्लांट करके बंदा बढ़िया है। कब आपने कराया था ट्रांसप्लांट? कब कराया था और किसने कितनी दी? इधर मेरे पास सामने दी ट्रांसप्लांट मैंने ये अपना 19 में करवाया है। इसमें कितना एक्सपेंसिव है? खर्च कितना आया था? आई खर्च कितना पड़ा था ट्रांसप्लांट करवाने में? ये अपना ये कम से कम 6 एक हाँ। मेरे को निकाल है, मेरे को मम्मी ने किडनी दी थी, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। ठीक है, 7 साल हो गए, 2017 में हुई थी मेरी किडनी ट्रांसप्लांट। आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था, ओके। एक्चुअली विकास को उम्र कितनी 26 साल 20 साल में दी थी, और तब से ये अपने फादर के साथ में मणिमाजरा में करता है, तब से मतलब इंडिपेंडेंटली अपना काम करता, अपना खर्चा वगैरह सारा निकालता है। सो इज नॉट डिपेंडेंट लोगों के ऊपर या फैमिली के ऊपर, अपना खुद काम करके अपना काम करता है। Everyone, and thanks Max Hospital and all the faculty जिन्होंने आज को invite किया है। Like मेरा transplant 2021 में हुआ था। It's been 3 years now, like fourth running है। Like मेरा lifestyle जैसे पहले था, almost मेरा same है। मतलब शौक थोड़े से और बढ़ गए। जैसे मैं पहले दौड़ता भागता था, तो मैं राइडिंग भी करता हूँ। So quite often मैं राइडर्स क्लब का मेंबर भी हूँ। I do things very actively. So it's a very good opportunity. अगर आपके यहाँ पे कोई भी ऐसा transplant issue होता है, तो I would say that every public should come forward and you know every person I would say जो भी अपना ट्रांसप्लांट करने के डोनर अवेलेबल है, वो आप डोनर अपने किसी नोन या अननोन आदमी को भी दें। I would say it's a charity. It's my submission is जैसे हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं ना अपना, one should start thinking in a way that we all live in the same society. हर किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी की जरूरत होती है। So this is from my side. Thank you. 2000 जनवरी 2024 में डॉक्टर साहब से मैं मिला, और हॉस्पिटल में बहुत मिला मैं, पर जगदीश शेट्टी डॉक्टर साहब से मिला मैं, तो बहुत स्पेशल वाले बहुत बढ़िया फील लगा। डॉक्टर साहब से बात की, शेयरिंग बहुत अच्छी थी, बॉन्डिंग हुई डॉक्टर साहब के साथ बढ़िया। फिर ट्रांसप्लांट 2024 में किया। अब मैं यही चंडीगढ़ ही रहता हूँ, वैसे तो मैं सिरसा से हरियाणा से, पर अब चंडीगढ़ में रह के बड़ा सारा काम करता हूँ, खुद ही करता हूँ। स्पेशल थैंक्स टू जगदीश शेट्टी डॉक्टर साहब। इसमें स्पेशल ये है कि बिल्कुल छोटे इंसिजन से रोबोटिक ट्रांसप्लांट किया, बिकॉज ये यंग बॉयज की शादी होनी है और ऊपर निशान वगैरह नहीं आता है शरीर पे, तो कॉस्मेटिकली अच्छा रहता है। सो इसके लिए रोबोटिक ट्रांसप्लांट किया था, ट्रांसप्लांट काफी अच्छा चल रहा है। होप ही इज हैप्पी अबाउट इट। 2 महीने में लगभग पहले जैसी रिकवरी हो गई थी। 2 महीने बाद पता नहीं चलता था कि हाँ ट्रांसप्लांट भी सर्जरी हुई है इतनी बड़ी, कुछ बिल्कुल पहले जैसी। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.